Hello friends, welcome to our online English classes for NET. As we are going to study how to study for NET National Eligibility Test for English Literature, a lot of students have asked a question that how to prepare for NET examination, as they feel that the NET examination is very hard, very difficult, the level of questions is very high, and they feel that we do not have an iota of idea that what we should study and how we should study. So we are going to discuss all these things in today's lecture, that for NET examination, how we should prepare and how we should study, and what to study and what not to study. Means that a lot of things are there which we can avoid as well. Okay, so how to study and what to study and what should be the pattern of study, all these questions we are going to answer today. And I hope that this lecture will be very helpful and beneficial for all of you. Okay, have a little discussion regarding literature. As to know what literature is very important to understand the next things. We must first understand what literature is. Literature, what do you think, what is literature? Literature is different from other genres of writing. Like we may read newspaper as well, we may read magazines as well. There are a lot of other things we may study, but literature is different from them. How is literature different from them? In literature, especially, what is different? The thing that makes literature different is that literature is basically based upon imagination, and literature has in it the quality of defined time and place. Actually, all other things, the rest of the things, have their limitation, that they are limited by time and place, but literature is not limited by time and place. Even today we study William Shakespeare and other writers with the same enthusiasm as the readers used to read at the time when they were alive and hale, and they were working and they were writing. So literature has the quality of defined time and place. Now, after the discussion regarding literature, I hope that you all are quite aware about literature and its qualities. Now we must proceed to नेट एग्जामिनेशन. नेट का जो पेपर है और नेट का जो पेपर का पैटर्न है वो किस तरह से है, हमें उसकी तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि हमारा जो फोकस है, मेन जो हमारा फोकस है वो नेट की तैयारी पर है. नेट का जो सिलेबस है वो हमें कैसे तैयार करना है, कैसे प्रिपेयर करना है. तो सबसे पहली बात यही आती है कि जब हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी मस्ट हैव इन आवर माइंड इज द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन. तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या है. यूजीसी ने काफ़ी वाइड सिलेबस को बहुत ही शॉर्ट में और कॉम्पैक्ट करके और अपनी साइट पे डाल रखा है, और क्लियर भी नहीं हो पाता है कि सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ना है. जैसे कि उन्होंने सिलेबस में दे रखा है ड्रामा. अब ड्रामा अपने आप में बहुत ज़्यादा एक ब्रॉड टर्म है, और ड्रामेटिस्ट बहुत सारे हुए हैं. आपने शायद कुछ एक के नाम सुने होंगे, जैसे विलियम शेक्सपियर का नाम सुना होगा आपने, लेकिन बहुत सारे ड्रामेटिस्ट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंग्लिश राइटर्स हैं, इंडियन राइटर्स हैं, अमेरिकन राइटर्स हैं, अफ्रीकन राइटर्स हैं, कैनेडियन राइटर्स हैं, ऑस्ट्रेलियन राइटर्स हैं,
देयर आर ए लॉट ऑफ राइटर्स, और इनको सबको अपने को पढ़ना होता है जब हम नेट की तैयारी करते हैं। तो एक चीज़ जो मुझे लगी, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसे मान लीजिए आपको एक बहुत लंबी दूरी की यात्रा तय करनी है, आप वहां तक जाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? व्हाट यू रिक्वायर फर्स्ट, यू रिक्वायर ए रोड मैप। आपको एक रोड मैप चाहिए कि मुझे वहां तक कैसे जाना है और कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन क्या है। डेस्टिनेशन ऑल ऑफ यू आर क्वाइट अवेयर ऑफ, द डेस्टिनेशन इज क्लियरिंग द नेट एग्जामिनेशन। और रोड मैप क्या है? रोड मैप अपने पास अपना सिलेबस है। अब रोड मैप के बाद हमें ये देखना होता है कि हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे। तो वहां तक पहुंचने के लिए यू मे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम्स ऑफ रीचिंग योर टारगेट। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से बाहर जाना है तो आप पैदल भी जा सकते हैं, आप साइकिल से भी जा सकते हैं और आप बाइक कार भी जा सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा अगर आप पैदल जाएंगे तो वैसे ही हर चीज़ के लिए और एक तरीका होता है, स्टडी का भी एक स्पेसिफिक तरीका होता है जिससे हमें समय कम लगता है। और वो सब तरीके बताने के लिए, वो सब चीज़ें डिस्कस करने के लिए ही ये क्लासेस जो हैं इनकी हमने शुरुआत की है। अब हमें ये देखना है कि नेट के एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और उनको हमें किस तरह से तैयार करना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम नेट का सिलेबस जब देखते हैं तो हमें वो इक्वल इम्पोर्टेंस की लगती हैं। वी फील दैट दे हैव इक्वल इम्पोर्टेंस एंड in examination paper various types of questions will be asked and all the topics of the syllabus will be covered. Yes, that is right, but not all the areas, not all the topics are given equal importance. अब सबसे पहले जैसे हम बात करें कि जो सबसे पहला अपना सिलेबस में जो टॉपिक है वो है ब्रिटिश लिटरेचर एंड ब्रिटिश पोइट्री। तो जैसे 2004 से पहले जब हम लोग नेट की तैयारी करते थे उस समय पे जो नेट का सिलेबस था उसमें लगभग एक ही लाइन लिखी हुई थी, फ्रॉम चौसर टू द प्रेजेंट डे। उसकी बजाय तो आज आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी स्पेसिफिक है, उसमें कुछ चीज़ें दी हुई भी हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो अभी जैसे कुछ साल पहले ट्रेंड था, अमेरिकन लिटरेचर पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन ट्रेंड समय के साथ बदल रहा है। पिछले 2 सालों में जो नेट का ट्रेंड है वो बदल गया है। नेट में जो क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं वो ब्रिटिश पोइट्री पे काफ़ी पूछे जाते हैं, ब्रिटिश लिटरेचर पे काफ़ी पूछे जाते हैं, और इसके अलावा लिटरेरी थियरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और एक नया जो चैप्टर जोड़ा गया है आपके नेट के सिलेबस में वो है कल्चरल स्टडीज का। तो इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अब जैसे आप अगर इन टॉपिक्स पे फोकस करते हैं तो आई कैन डेयर से दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल फाइंड विल बी फ्रॉम these topics, like 70 to 80% of the paper will be related to, or the questions will be related to these topics। तो बाकी का 20% है उसको ज़्यादा फोकस करना है अपने को या 80% को फोकस ज़्यादा करना है। तो जब हम इस 80% को ज़्यादा फोकस करेंगे तो एक पहली बात तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, यस वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड द सिलेबस। उसके बाद बाकी बची 20% चीज़ को आप अवॉइड नहीं करेंगे, लेकिन उसको इतना ज़्यादा फोकस अपने को नहीं करना है। नाउ मैंने सिलेबस को काफ़ी डीपली स्टडी किया है और मैंने बहुत सारा इन दिनों में जो नेट के पेपर्स हैं उनको सर्च किया है, नेट का जो पेपर का ट्रेंड है उसको मैंने सर्च किया है आप लोगों के लिए, और मैंने ये देखने का प्रयास किया है कि जो ट्रेंड अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग नेट में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और कैसे आपको तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात बहुत ही क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि जैसे नेट का जो अभी पैटर्न चल रहा है, अभी जो नेट के पेपर्स आ रहे हैं उनमें इन्हीं चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है, जैसे ब्रिटिश लिटरेचर है और लिटरेरी थियरी है और कल्चरल स्टडीज़ है। एक जैसे टॉपिक पहले आता था लिटरेरी टर्म्स का, अब उस लिटरेरी टर्म्स के टॉपिक को अब पूरी तरह से और हटा दिया गया है। लिटरेरी टर्म्स को अब बहुत कम वेटेज दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि
लिटरेरी टर्म्स पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन लिटरेरी टर्म्स पे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप अगर लिटरेरी टर्म्स के लिए तैयारी करेंगे तो आप मान के चलिए कि आपको कम से कम 200 लिटरेरी टर्म्स हैं जिनको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और वो सारे लिटरेरी टर्म्स आप डिटेल में पढ़ेंगे, उनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, याद करेंगे, कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आपको उन चीज़ों पर फोकस करना है जिनको पढ़ करके और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आपको लगे कि हाँ मैंने नेट का सिलेबस काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। ओके, तो उसके बाद एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब हम नेट की तैयारी करनी शुरू करेंगे तो उसमें अपने सामने सबसे पहले आएगा कि जैसे 1-2 स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा है कि सर हम नेट की तैयारी में क्या पढ़ें, हमने इतना सब कुछ पढ़ा और पेपर देखा प्रीवियस ईयर का तो हमें लगा हमें कुछ भी नहीं आता है। हाँ, ये बिल्कुल होगा, ये सही है। कारण क्या है कि वाकई जो सिलेबस ऑफ द नेट एग्जामिनेशन and especially for the North Indian students, the students of Rajasthan, Haryana, Punjab, for these students the syllabus is really very tough. Why? Because in the syllabus prescribed in the universities of the North India, like in Rajasthan University, Bikaner University, they do not include these types of topics. Nowadays they are including, but the students who are preparing for net examination in present time, they have cleared their graduation and post graduation, so they are preparing for net examination. अब उनको नेट में तैयारी करते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारा कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। अब देखिए, आपने मन बना लिया है कि हमें नेट क्लियर करना है, तो ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि नेट आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि नेट का पास परसेंटेज बढ़ा दिया गया है। नाउ फ्रॉम 2021 onwards net is compulsory and for PhD as well. So if you want to pursue PhD as well, और आपको मैं बता दूं कि PhD करना नेट करना इसमें स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट काफ़ी कम था कुछ समय पहले, लेकिन वर्तमान में एट प्रेजेंट टाइम द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। तो ये जो इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, इसके साथ नेट पास करने वाले स्टूडेंट्स की, क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स की जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो हमें हताश नहीं होना है, हमें ये उत्साह रखना है मन में कि यस आई विल डू इट, क्योंकि जो सबसे मुश्किल है वही करना तो एक चैलेंजिंग जॉब होता है ना, और जो चैलेंजिंग जॉब है उसे करने के बाद ही अपने को कुछ अचीवमेंट मिलता है कि यस आई हैव अचीव्ड समथिंग। सो अब हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में जैसे देखिए, अगर हम बात करें कि शुरुआत से लेकर के और आज तक हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आपको मैं बता दूं कि हैफेज़ड स्टडी इस तरह से कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं ये करने से काम नहीं चलेगा। आपने कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, ये करेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा सिस्टमेटिक वे में। अब जैसे सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, फोकस अपना किस पे रहना चाहिए, ब्रिटिश लिटरेचर पे अपना फोकस रहना चाहिए। तो ब्रिटिश लिटरेचर जो हम पढ़ेंगे, शुरुआत से लेकर के हमें ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ना होगा। और शुरुआत कहाँ से है? फ्रॉम एंग्लो सैक्सन पीरियड। एंग्लो सैक्सन पीरियड से लेकर के और प्रेजेंट डे तक, जिसे हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहते हैं, वहां तक की पूरी जो स्टडी है वो हमें करनी होगी। लेकिन पूरी स्टडी का मतलब आप फिर कह सकते हैं कि सर हम फिर क्या पढ़ें, तो उसका जवाब ये है मेरे मित्रों कि आपको जो पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उन्हीं को पढ़ना है। लेसर नॉन राइटर्स यू मे अवॉइड। मैंने आपको बताया आप अवॉइड भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? अब देखिए, एंग्लो सैक्सन एज से जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें मेनली पढ़ना क्या है, उस एज का जो बैकग्राउंड है उसे पढ़ना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस एज में कौन कौन से किंग्स हुए हैं और उनका लिटरेचर में क्या कोई रोल रहा है। अब जैसे जो राजा हैं, ट्यूडर किंग्स हैं, वो कौन थे, एडवर्ड कौन था, रिचर्ड सेकंड कौन था, रिचर्ड थर्ड कौन था, और इनका लिटरेचर में क्या इंपॉर्टेंस है। फिर बाद में जैसे एंग्लो सैक्सन में अगर अपन बात करें कि एंजल्स कौन थे, जूट्स कौन थे, है ना, कैल्टिक जो प्रजाति है वो कौन थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये कौन थे, ये कहाँ से आए थे, नॉर्मेंडी क्या है, और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट किसे कहते हैं, वो कब हुआ था, बैटल ऑफ रोजेस क्या है, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स क्या है। उसके बाद जैसे हम आगे बात करें तो हम चौसर के एज में आते हैं। तो एज ऑफ चौसर में जोफ्रे चौसर के बारे में हम पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे?
आप सबने नाम सुना है जॉफरी चौसर का। चौसर 14th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए, हमें ये पढ़ना होगा। चौसर को और किस चीज के लिए जाना जाता है? उन्होंने ब्लैंक वर्स इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने राइम रॉयल इंट्रोड्यूस किया था। नाउ व्हाई राइम रॉयल इज नॉन एज राइम रॉयल? अब आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। कौन सा किंग है जिसने पोएम लिखने के लिए कहा था, राइम लिखने के लिए कहा था, तो इस राइम को राइम रॉयल कहा जाने लग गया, ये अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे चौसर है, तो चौसर का मोस्ट इंपोर्टेंट जो वर्क है वो है प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। अब प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स बिकॉज इट इज प्रिस्क्राइब्ड इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन सिलेबस, तो वो लगभग सारे स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन प्रोलॉग में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या आते हैं? प्रोलॉग पे क्वेश्चन आते हैं 29 कैरेक्टर्स के बारे में। नाउ यू नो दैट देयर आर 29 कैरेक्टर्स, व्हाट आर देयर नेम्स? यू मस्ट रिमेंबर, आपको याद करना होगा 29 कैरेक्टर्स के नाम क्या हैं। फिर उन कैरेक्टर्स के बारे में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो उन कैरेक्टर्स की स्पेशल क्वालिटीज के बारे में पूछा जाता है। अब जैसे कुछ एक के नाम जो मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, जैसे नाइट का कैरेक्टर है, स्क्वायर का कैरेक्टर है, मंक का कैरेक्टर है, फ्रायर का कैरेक्टर है, नन का कैरेक्टर है, प्रायरस का कैरेक्टर है, और द फिजिशियन का कैरेक्टर है, मर्चेंट का कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर्स आपको याद होने चाहिए, और इनकी जो इनके ड्रेस कोड के बारे में जो बताए गए हैं, इनकी जो बोलने की स्टाइल है उसके बारे में बताए गए हैं, और इनकी स्पेशलिटी जो बताए गए हैं। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि who was the person who said that I like gold especially? Who says this? The answer is the physician says this. तो आपको ये प्रोलॉग पढ़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ I want to tell you my dear students that question is also asked from the Canterbury Tales. Though Canterbury Tales is not a part of the syllabus in most of the universities, but questions are also asked from the Canterbury Tales also. अब जैसे टेल्स है, नाइट्स टेल क्या है, नन्स टेल क्या है, स्क्वायर्स टेल क्या है, इन टेल्स को भी आपको पढ़ना है। पढ़ने का मतलब कहीं पर भी ये नहीं है कि आपको इनको पूरा स्टडी करना है, वो आप तब करिएगा जब आपके पास फ्री टाइम हो और आप एंटरटेनमेंट के लिए इनको पढ़ रहे हो। आपको इनकी ब्रीफ समरी जो है वो आपको पढ़नी है। तो चौसर के एज के बारे में हम बात कर रहे हैं। चौसर के एज में अदर राइटर्स कौन हैं? हु आर अदर राइटर्स फ्रॉम द एज ऑफ चौसर? जैसे जॉन गोवर है, विलियम लैंगलैंड है। अब जॉन गोवर का नाम आता है तो जॉन गोवर जो है उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने कौन कौन से वर्क्स लिखे हैं? अच्छा, चौसर के बारे में जैसे क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि चौसर ने इटालियन लैंग्वेज में क्या लिखा है, फ्रेंच लैंग्वेज में उन्होंने क्या लिखा है, लैंगलैंड ने इटालियन में कौन सी बुक लिखी, जॉन गोवर ने इंग्लिश लैंग्वेज में कौन सी बुक लिखी? कन्फेसियो मेंटिस, कन्फेशन ऑफ ए लवर, जो कि उसका दूसरा नाम है। अब क्वेश्चन कन्फेसियो मेंटिस में भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है विच बुक हैज अनदर टाइटल कन्फेशन ऑफ ए लवर, या ऐसे भी आ सकता है कि कन्फेसियो मेंटिस जो बुक है उसकी थीम क्या है। आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं आपको उसकी थीम पता होनी चाहिए, उसका जो राइटिंग स्टाइल है राइटर की वो पता होना चाहिए, और आपको स्पेसिफिक और प्रिसाइज स्टडी करनी है। और आने वाले जो लेक्चर्स हैं, आने वाले जो अपनी क्लासेस हैं, उनमें हम इन्हीं के बारे में वी विल डिस्कस इन डिटेल। यू नीड नॉट वरी, आई विल प्रोवाइड यू मटेरियल एज वेल, आई विल कंडक्ट टेस्ट एज वेल। टेस्ट भी हम लेंगे, मटेरियल भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और आपको जो पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको उसे पढ़ना है। I hope that today's lecture was helpful to you, and I hope that by and by you will progress towards achieving your target, और नेट क्लियर करने का जो अपना टारगेट है वो आप सभी अचीव करेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ with these best wishes I say goodbye to all of you. Thanks. One more thing, मैं बीच में भूल गया था आपको बताने के लिए, एक जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो इसी वीडियो के और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको उस चैनल को भी ज्वाइन करना है ताकि उसमें जो मटेरियल है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो वो आपको उसमें मिल जाएगा। थैंक्स।
वन मोर थिंग, मैं बीच में भूल गया था आपको बताने के लिए, एक जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो इसी वीडियो के और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको उस चैनल को भी ज्वाइन करना है ताकि उसमें जो मटेरियल है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, तो वो आपको उसमें मिल जाएगा। थैंक्स। वन मोर थिंग, मैं बीच में भूल गया था आपको बताने के लिए, एक जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो इसी वीडियो के और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको उस चैनल को भी ज्वाइन करना है ताकि उसमें जो मटेरियल है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, तो वो आपको उसमें मिल जाएगा। थैंक्स। वन मोर थिंग, मैं बीच में भूल गया था आपको बताने के लिए, एक जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो इसी वीडियो के और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको उस चैनल को भी ज्वाइन करना है ताकि उसमें जो मटेरियल है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, तो वो आपको उसमें मिल जाएगा। थैंक्स।